مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ کے جامعہ فاطمۃ الزہرا جنیار ڈنگلا کے الفاطمہ انگلش میڈیم اسکول میں ادارہ کے بانی و محتمم قاری سید آفتاب حسین شاہ کی زیر سرپرستی سالانہ جشن ڈیزلنگ سٹارز کے نام سے منایا گیا، جس میں نائب تحصیلدار چنڈک نصیر احمد مہمان خصوصی کے طور پر شامل ہوئے۔ اس پروگرام میں اس اسکول میں زیر تعلیم ننھے طلباء و طالبات نے اپنے علمی جوہر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کلام پاک، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقاریر و کلچرل پروگرام کے علاوہ سماج میں بچیوں کو حقیر نظر سے دیکھنے والوں کے لیے ڈرامے کے ذریعے پیغام عام کیا اور شرکاء سے تعلیم کی داد حاصل کی۔ بعد ازاں تمام ننھے طلباء و طالبات کو انعامات و مہمان خصوصی و دیگر مہمانان و صحافیوں کو اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ آخر میں مہمان خصوصی نائب تحصیلدار نصیر احمد نے اپنے خطاب میں تعلیمی نسواں کو عام کرنے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسے وقت کی ضرورت قرار دیا اور ننھے طلباء و طالبات کی بہترین کارکردگی پر ادارہ کے بانی و محتمم قاری سید آفتاب حسین شاہ ادارہ حاضہ کے اساتذہ و استانیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ادارہ کی مزید ترقی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ قاری سید آفتاب حسین شاہ نے تمام شرکاء و نونہالوں کے والدین و مہمانان خصوصی و صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ اس اسکول کی بنیاد حال ہی میں رکھی تھی، جس کی ایک جھلک آج شرکاء نے دیکھی اور انشاءاللہ مستقبل میں مزید ترقی کی منازل طے کرنے کا عزم کرتے ہوئے جامعہ فاطمۃ الزہرا کے 8 سال کی کامیاب تکمیل پر شرکاء کو بتایا کہ ادارہ حاضہ میں 400 طالبات دینی و عصری تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں اور ہر سال کی طرح امسال ادارہ سے 9 عالمہ و فاضلہ، 24 قاریہ و دیگر طالبات کی دستار بندی ہوگی جو ملک کے کونے کونے میں تعلیمی نسواں بالخصوص اسلامی تعلیمات مستورات تک پہنچائیں گے۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے نائب تحصیلدار نے تعلیمی نسواں کو عام کرنے کے ساتھ ہی بتایا کہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے جبکہ عورت کی تعلیم پورے سماج کی تعلیم ہوتی ہے۔ انہوں نے ادارہ کے بانی و دیگر شرکاء و عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے معاشرے کو منشیات کی لعنت سے بھی پاک رکھیں و منشیات کی لعنت کو پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے ضلع انتظامیہ کا تعاون کرے اور اس کے متعلق سماج کو بیدار بھی کرے۔ آئیے دیکھیے اس ضمن میں ڈنگلا جنیار سے کور کی گئی ہماری یہ خاص اور مفصل رپورٹ۔ لاحق ہوتی ہیں، لیکن اس ادارے کے اندر 4 دیواری کے اندر 400 بچیوں کے لیے رہنے کے لیے مکمل بندوبست ہے، پردے کا اہتمام ہے اور گراؤنڈ کا اہتمام ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے اچھے قسم کا جو ہے کھانا بھی ادارے کی طرف سے جو ہے بچیوں کو مہیا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں صرف غریبوں کی بچیاں نہیں پڑھتی ہیں بلکہ بڑے بڑے افسران کی بچیاں جو ہے یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ کلاس میں پڑھتی ہوں، میں آپ کے سامنے نعت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، سینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ الناس اجمعین، یعنی سرکار دو عالم صلی
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई भी मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मुझे अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न समझे। ये है कि एक शख्स बारगाह नबी में हाजिर होकर अर्ज किया, या हबीबी या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी, या हबीबी या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है? उस शख्स ने कहा, नहीं नहीं यार। The place where we learn every day, we make friends and have books and pencil. Learning together is so sweet. We read, write and sometimes play. School is fun in every way. Thank you so much. हदीस शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा गरीब दुनिया में वो शख्स है जिसके पास इल्म ना हो। एक शख्स बारगाह नबवी में हाजिर होकर अर्ज किया, या हबीबी या रसूलल्लाह, या हबीबी या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है? तो उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरे पास रोज़ों का अंबार नहीं है, या रसूलल्लाह मेरे पास नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं है, या रसूलल्लाह मेरे पास नेकियों का ढेर नहीं है, या रसूलल्लाह मैंने ज़्यादा खैरात नहीं की, या रसूलल्लाह आखिरत के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मगर मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन है। मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हर चीज से ज्यादा है। यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा। थक कोशिशों से यहाँ तक पहुँचाने में कोई कमी ना छोड़ी। इनके साथ यहाँ पे जितने मकामी हजरात हैं वो इनकी बात पे लब्बैक करते रहे। रात दिन उन्होंने मेरी कमी की तो खुदा ने चाहा कि ये मदरसा और इसके साथ साथ जो पिछले साल बड़ी कोशिश से मैं मशकूर हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके जो डीसी साहब थे यहाँ पे, कि जहाँ तक इल्म का ताल्लुक है, ताल्लुल इल्म मिनल महदिल अहद, मैं माज़ूर हवा हूँ और माँ हज़रात बैठे हैं, मेरी उस तलफ़्फ़ुज़ में गलती हो सकती है। कहने का मकसद ये है कि इल्म सीखो, हदीस है, इल्म सीखिए। माँ की गोद से लेकर कब्र की वो आखिरी लहर का जो वो रता अंदर लगाते हैं, वहाँ तक सीखने का हुक्म दिया गया है, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ उम्र की कोई कैद नहीं है। दूसरी ये बात भी साबित है कि इल्म की तफरीक नहीं की गई है। इल्म लफ्ज़ी बहुत बड़ा है, चाहे उसमें असरी उलूम हो चाहे दीनी उलूम हो, दोनों की ज़रूरत है। अदारे के हवाले से मैं ये कहूँगा, कहते हैं एक मर्द की तालीम सिर्फ एक फर्द की तालीम है, एक बच्ची की तालीम जो है पूरे घर की तालीम है, पूरे समाज की तालीम है। समाज उस वक्त तक अधूरा है जब तक कि इसमें तालीम निस्वां यानी बच्चों की तालीम न हो। एक बच्ची को तालीम दिया गोया पूरे घर को तालीम दे दिया, जिसको देने में मैं समझता हूँ कि बहुत सारी दुश्वारियाँ जो हैं पेश आती हैं। इन चीज़ों का सामना करने के बावजूद उन जैसे दूर दराज इलाके में इतना एक अच्छा अदारा कायम करना, जामिया फातिमा ज़ोहरा के नाम से, मैं आफ्ताब साहब को, इनकी टीम को, यहाँ के मकामी बाशिंदगान को दिल की अभी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुआ हूँ बिलखसूस आज जो हमारे मेहमान खुसूसी जनाब नसीर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैं इनसे गुजारिश की तो इन्होंने फौरन कहा इंशाअल्लाह। मुझे ये खुशी हुई कि मदरसा आपका तो मैं ज़रूर आऊँगा। और साथ साथ इस कमेटी के रुकन जनाब अलहाज ठेदार मोहम्मद यूसुफ साहब, मख्तार साहब और ताहिर मोहम्मद साहब, फौजी यूनुस साहब, कशाल साहब, बैकत साहब,
डॉक्टर आरिफ साहब, परवेज साहब और हाजी बशर साहब, माशा आरिफ साहब, गुलाम नबी साहब, हनीफ साहब, सईद कासिम साहब, जितने मेरे भाई नौजवान आए, मैं सब शौकत साहब, सबसे जितने मेरे भाइयों ने काम किया, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस नायब साहब, आपको एक खुशखबरी है हम दे दें, ये जामिया फातिमा ज़हरा वो है, इसकी मुद्दत बहुत कम है, मेरी मुद्दत तो कम है लेकिन इसकी मुझसे भी ज़्यादा कम है। इसकी अभी 8वां साल ये मुकम्मल होने लगा और जम्मू कश्मीर में हम 9 आलमा फायदा अता कर रहे हैं। इस साल रमजान से पहले जो हमारी बच्ची फारुक हो रही हैं, 9 बच्चियां आलमा फायदा इंशाल्लाह। मैं अहले सुन्नत वल जमात के एक स्टेट से पैगाम दे रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, जो बच्ची 9 फारुक होगी, जहाँ आप पढ़ाने गए और जिस इंटरव्यू में आप कहेंगे अरबी के लिहाज से आलमा फायदा, जहाँ आप चाहोगे तो इंशाल्लाह नंबर टॉप पे आएंगी जम्मू कश्मीर में। ये 9 बच्चियां हमारी इस साल दस्तार होगी, उसके साथ ही साथ आइंदा साल इंशाल्लाह इससे ज़्यादा होगी और कारिया जो फारुक होगी वो 24 होगी इस साल। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की ताउन से। और आज ये अकेडमी का एक आपको छोटी सी बता के आपको वक्त लूंगा, ये अकेडमी कोई बड़ी मुद्दत नहीं हुई, इस अकेडमी को अभी 7वां महीना शुरू है, यानी मार्च के अप्रूव हुई थी। हमारे यासीन चौधरी साहब और सीरो आफत में मेरे भाइयों ने, बिलखसूस तारिक भाई ने और मदरसा साहब ने बड़ा काम किया और यहाँ के जड़ियों साहबा ने, मैडम मेरी बहन, उन्होंने बड़ा इस मदरसे जब देखा तो उन्होंने मुझे ही मशवरा दिया कि अकेडमी खोलो और हाजी यूसुफ पीछे पड़े थे और उन्होंने ये अकेडमी अभी 6 महीने 7वां महीना चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं मदरसे में पढ़ाई का देता हूँ इसी तरह अकेडमी को भी देता हूँ, चेक करता हूँ। मेरे साथ एक आपसे आप तक एक बात कहना चाहता हूँ, सारे इस वक्त भी 400 बच्चे यहाँ जामिया फातिमा में हैं, करगल, महाचल, यूपी और जम्मू कश्मीर पूरे की, लेकिन किसी बच्ची के पास तो मोबाइल हो ही नहीं सकता। मदरसे में शर्त पहली है, साथ साथ जितने मेरे टीचर बनाने वाले हैं उनके पास मोबाइल सुबह 8 बजे जमा होता है, शाम को 5 बजे मिलता है टीचरों को। और इसी तरह अकेडमी में भी हमारी ये सख्ती रहती है। इंशाल्लाह ये लोगों का ये मानत है हमारे पास, शायद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक दे दी कि हम लोगों की मानत को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बच्चियों को, टीचरों को ये दस देते हैं कि अगर आपने इन बच्चियों का जिंदगी बर्बाद की, कल तुम्हारी इसका हिसाब तुम लोगों ने देना है। मेरा काम है खाना बनाना और राशन का इंतजाम करना, आपकी तरह का इंतजाम करना, पढ़ाई का इंतजाम आपका है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अगर आपकी मेरी जिंदगी रही, आइंदा साल इससे बड़ा प्रोग्राम होगा, उसमें भी इंशाल्लाह मेहमान खुसूसी आप जहां मदद दें आप ही होंगे। हमारा ये नहीं कि हम आपको भूल जाएंगे। हमारे आज तक हमारे डॉक्टर विनोद एसएसपी डीआईजी बन गए इंशाल्लाह, जब से मदरसे में आए थे, मदरसे में आज तक उनका कारनामा मेरे साथ है। मदरसा रजिस्ट्रेशन कराने में उनका बहुत बड़ा नाम था, तो आज तक ना हम उनको भूलते हैं, जैसे इस तरह आपको भी नहीं भूलेगा। आज आप तशरीफ लाए, इंशाल्लाह हमारे डी साहब हो, एसपी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जितनी एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब ने मेरा बड़ा साथ दिया है। हमारे जमात अहले सुन्नत के तमाम उलमाए इकराम, बिलखसूस कायदे अहले सुन्नत मुफ्ती फारूक हुसैन मिसबाही, वो शेख हदीस भी हैं, मुफ्ती फारूक हुसैन मिसबाही साहब, हाफिज अब्दुल मजीद, मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज अब्दुल मजीद मदनी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना सईद इराद हुसैन शाह साहब कादरी, और जितने हमारे उलमाए इकराम, हमारे मस्जिद के इमाम साहब और जितने मेरे महल्ले के भाइयों ने साथ दिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ करता हूँ खालिक मालिक परवरदिगार आलम, जितने मेरे भाई नौजवान ताए भाई और जितने ये छोटे वकार भाई और जितने छोटों ने या बड़ों ने साथ दिया, मैं दुआ को अल्लाह ताला इन सब को सलाम रखे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ को अल्लाह ताला जिस तरह ये टीचर मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल का दर्जा अता फरमाए। मुझे मदऊ किया गया था। ये जामिया फातिमा ज़हरा नाम का जो अदारा है, जिसमें अल फातिमा स्कूल एजुकेशन जो है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है, इसकी एनुअल शायद फंक्शन था, उसमें मुझे मदऊ किया गया था। तो आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा डिसिप्लिन था, बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बच्चे जो हैं बड़े ज़ाब्ते के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ अपने जो प्रोग्राम्स थे वो पेश कर रहे थे। बहुत अच्छी स्पीच वगैरह वो दी थी बच्चों ने। यहाँ सिविल सोसाइटी से जो गिरदो एतराफ़ से लोग हैं वो भी तशरीफ़ फरमा थे। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अदारे के बानी
हाफिज आफ्ताब साहब को कि इनकी निगरानी में अदारा जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ख़ास बात इससे बेहतरीन और अच्छी बात यह है कि ये बच्चियों का अदारा है। बच्चियों की तालीम जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि एक मर्द की तालीम जो है एक फ़र्द की तालीम है, एक बच्ची की तालीम जो है एक पूरे समाज की तालीम है, पूरे घर की तालीम है। तो बच्चियों की तालीम को मुकम्मल करने के लिए हाफिज साहब और इनकी टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत बेहतरीन जो है काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो एकेडमिक साइट्स है बच्चों की, उसको स्ट्रांग करने के लिए जो है इन्होंने साथ में एकेडमी जो है खोली है। ये बहुत अच्छी बात है कि दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म जो है बच्चों को वो भी मिलेगा। तो मैं अपनी तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, यहाँ के उस्ताज़ा कराम्स को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे ये कहना चाहूँगा, आपको कोई भी गवर्नमेंट की जो बुनियादी सहूलत है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या और मामलात हों, जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन 24/7 जो है आपकी खिदमत में यहाँ जो है हाजिर रहती है। बच्चों की रजिस्ट्रेशन टाइमली करवाएं, इनकी एडमिशन टाइमली करवाएं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से बच्चों के लिए जो एकेडमिक्स वाले बच्चे हैं, इनके स्कॉलरशिप्स वगैरह होते हैं, उनके लिए अप्लाई करें ताकि बच्चों को अपनी तालीम के साथ साथ जो है फाइनेंशियल जो है वो भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू। मैं यही स्टेज से कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है। देखो, जब आप दीनी तालीम भी हासिल करेंगे, दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे, तो तभी आप समाज में एग्जिस्टेंस जो है आपका होगा। आपकी मुकम्मल जो ज़िंदगी है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, वो जो है आपकी दीनी तालीम से बनती है। तो जब आपके पास दीनी की दुनियावी तालीम भी होगी, आप न सिर्फ अपने के लिए एक बेहतरीन बन सकोगे, बल्कि आप समाज में भी कंट्रीब्यूट कर सकोगे।